Accounting for branches including foreign branches. Understand the concept of branches and their classification from अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन करना है. हाँ, मे बी क्लासिफिकेशन कुछ अलग हो सकता है, बट हमें अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन करना है. उनका क्लासिफिकेशन ऐसे भी हो सकता है कि कंट्री वाइज, हाँ, स्टेट वाइज, बट वो नहीं चाहिए हमें. अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन अलग है. डिस्टिंग्विश बिटवीन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट ब्रांचेस एंड इंडिपेंडेंट ब्रांच. Learn various methods of charging goods to branch. Solve the problems when goods are sent to branch at wholesale price. Prepare the reconciliation statement of branch and head office transactions after finding the reasons for their disagreement. ये reconciliation छोड़ता ही नहीं है ना हमें. Incorporate branch balances in the head office books. Differentiate between integral and non-integral foreign branches and learn the techniques of foreign currency translation in case of foreign branches. So classification of branches कैसे हैं? Inland and foreign. Inland में dependent branches for which whole accounting records are kept at head office. So नाम से ही आपको समझा होगा. Dependent मतलब dependent on head office. And independent branches which maintain independent accounting records. So classification of branches कैसे? Inland, foreign. Inland में dependent and independent. Dependent में books कौन maintain करेगा? Head office. Independent में branch. Now methods of maintaining accounts of dependent branch. Dependent branch का कौन record maintain कर रहा है? Head office. So हेड ऑफिस कैसे मेंटेन करेगा? देखो, एक तो गुड्स इनवॉइस्ड एट कॉस्ट और सेलिंग प्राइस, तो उसमें डेटर्स मेथड, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड, मतलब फाइनल अकाउंट्स मेथड, एंड गुड्स इनवॉइस्ड एट होलसेल प्राइस, होलसेल ब्रांचेस मेथड. Introduction. A branch can be described as any establishment carrying on either the same or substantially the same activity as that carried on by head office of the company. It must also be noted that the concept of branch means existence of head office. Branch है इसका मतलब there is existence of head office, क्योंकि head office तो नहीं है, branch है सिर्फ, ऐसे हो ही नहीं सकता. For there can be no branch without a head office, the principal place of business. Branch offices are of a great utility in the sense that they allow business to be expanded closer to the clients. So lecture है चालू, हाँ, 7:30 तक. So branch offices are of a great utility in the sense that they allow business to be expanded closer to the clients and hence they facilitate face-to-face interaction with customers. So आपको business बढ़ाना है तो आपको branches बढ़ाने होंगे so that you will go closer to the clients. From the accounting point of view, branches may be classified as follows. So inland branches, which can be further classified as independent branches which maintain independent accounting records, and dependent branches for which wholesale accounting records are kept at head office. So inland branches which can be further classified as independent branches which maintain independent accounting records, dependent branches for which whole accounting records are kept at head office, and दूसरा foreign branches. Now difference between branch and department. Branch, establishment at location different from head office to carry either same or substantially same activity as carried on by head office. So बैंक के केस में तो आपको इजी जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच इधर है उधर है, ओके, कोथरूड ब्रांच, ये बैंक, सदाशिवपेट ब्रांच, सहकार नगर ब्रांच, ओके, मतलब सिटी में भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं ना. एंड डिपार्टमेंट मतलब डिवीजन ऑफ अ
large organization dealing with a various kinds of activity at the same location. Let's take an example of CA firm working in the field of accounting, taxation and finance, having office at Mumbai, Chennai, Delhi, practicing such fields. Then the CA firm has various branches in different cities, that is Mumbai, Chennai, Delhi. Also it has various departments of auditing, taxation and finance at one particular branch, that is location. So distinction between branch accounts and departmental accounts. So basis of distinction देखो, maintenance of accounts. So distinction between branch accounts and department. Okay, maintenance of accounts. Branch accounts may be maintained either at branch or at head office. Department में departmental accounts are maintained at one place only. Apportionment of common expenses, as expenses in respect of each branch can be identified, so the apportionment problem never arises. Correct. एंड अपॉर्शनमेंट ब्रांच के केस में नहीं आएगी ना, इस ब्रांच का इतना हुआ, उस ब्रांच का उतना हुआ. अपॉर्शनमेंट कहाँ पर आएगा? डिपार्टमेंट. कॉमन एक्सपेंसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिपार्टमेंट्स कंसर्न्ड ऑन सम इक्विटेबल बेसिस कंसिडर्ड सुटेबल इन द केस. रिकंसिलिएशन ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच अकाउंट इज नेसेसरी इन केस ऑफ ब्रांचेस मेंटेनिंग इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. जो डिपेंडेंट है उनका अकाउंट ही हेड ऑफिस बनाता है, तो रिकंसिलिएशन नहीं लगेगा. एंड डिपार्टमेंट के केस में सच प्रॉब्लम नेवर अराइजेस. कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी फिगर्स एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट. कन्वर्जन ऑफ फिगर्स ऑफ फॉरेन ब्रांच इज नेसेसरी. सच प्रॉब्लम्स नेवर अराइजेस. नाउ मतलब मेन क्या है हमारे लिए? डिपेंडेंट ब्रांचेस. हाँ, when the business policies and the administration of a branch are wholly controlled by the head office and its accounts also are maintained by it, the branch is described as dependent branch. Branch accounts in such a case are maintained at the head office out of the reports and returns received from the branch. So branch में कितना सेल हुआ है, कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, उसका डेटा तो हमें ब्रांच से ही मिलेगा ना. सो ब्रांच क्या देती है? आइदर रिपोर्ट्स देती है या कुछ रिटर्न्स बोलते हैं उसको. रिटर्न रिसीव मतलब एक स्टेटमेंट रिसीव होगा ब्रांच से हेड ऑफिस को, एंड देन हेड ऑफिस विल प्रिपेयर अकाउंट. सम ऑफ द सिग्निफिकेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस that are operated in this manner are described below. A branch set up merely for booking orders that are executed by the head office. Such a branch only transmit orders to the head office. So हम क्या करेंगे? एक टेबल डाल के बैठेंगे, हम सिर्फ ऑर्डर्स लेने का काम करेंगे, बट एग्जीक्यूशन हम नहीं करेंगे. ब्रांच में कुछ नहीं, एग्जीक्यूशन तो हेड ऑफिस से होगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने एक रेस्टोरेंट खोला है, ओके, डेक्कन में, डेक्कन एरिया विच इज द मिडल ऑफ सिटी, एंड आपको ब्रांचेस चाहिए, तो आप क्या करो? सिर्फ ऑर्डर्स लेने के लिए टेबल्स डाल दो अलग अलग जगह पे, एंड आपका जो प्रिपरेशन होगा एंड आपका जो फूड का डिलीवरी जाएगा वो डेक्कन से ही जाएगा. बट आपको सिर्फ आपका एग्जिस्टेंस दिखाना है कि हाँ मेरा रावेत में भी है, मेरा सहकार नगर में भी है, तो वहाँ पे सिर्फ टेबल्स आदमी बिठाओ कि आप सिर्फ ऑर्डर्स लो, वो भी ऑनलाइन, सब मुझे आ जाएगा डेक्कन पे रिकॉर्ड, उस हिसाब से मेरा स्टाफ बनाएगा फूड एंड उधर उधर डिलीवरी हो जाएगी. तो ये आपने क्या किया? अ ब्रांच इज सेटअप मियरली फॉर बुकिंग ऑर्डर्स, ठीक है, बट एग्जीक्यूटेड बाय हेड ऑफिस. सेकेंड इज अ ब्रांच एस्टेब्लिश्ड एट अ कमर्शियल सेंटर. मतलब किसी मॉल में कमर्शियल सेंटर्स होते हैं ना, मॉल मतलब, तो उस सेंटर्स पे आपका ब्रांच डाल दो, ठीक है, मतलब मॉल में आपका स्टोर होना चाहिए. सो अ ब्रांच एस्टेब्लिश्ड एट अ कमर्शियल सेंटर फॉर द सेल ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय द हेड ऑफिस.
हम गुड सप्लाई करेंगे आपको, आप वहाँ पे सेल करो। कमर्शियल सेंटर फॉर सेल ऑफ द गुड सप्लाइड बाय द हेड ऑफिस एंड अंडर इट्स डायरेक्शन ऑल कलेक्शंस आर मेड बाय द हेड ऑफिस। मतलब जो भी वहां पर आपका सेल होगा कमर्शियल सेंटर पे, उसका पैसा जो आएगा वो हेड ऑफिस को देना है। ओके, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आपको एग्जीबिशंस में भी अगर आपने स्टॉल लगाया तो इट्स अ टेम्पररी ब्रांच ओनली ना, कि उस स्टॉल पे गुड सप्लाई किया जाएगा, जो भी सेल होगा हेड ऑफिस को मिलेगा वो अमाउंट। सो ये दोनों चीजें आपको पढ़ के समझ में आया होगा कि ये पूरे डिपेंडेंट है ऑन हेड ऑफिस। इनको सिर्फ मार्केटिंग करके वहां पर सेल करना है, बट जो भी सेल से पैसा आ रहा है वो पूरा हेड ऑफिस को ही जाता है। देन थर्ड इज अ ब्रांच फॉर द रिटेल सेल ऑफ गुड सप्लाइड बाय द हेड ऑफिस। जैसे आप चितड़े स्वीट्स के वगैरह, चितड़े बंधु मिठाई वाले, इनका वगैरह ब्रांच देखते हो फॉर रिटेल सेल ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय द हेड ऑफिस। तो वो जो ब्रांचेस होते हैं उसमें क्या होता है, रिटेल सेल होता है ऑफ गुड्स। तो वो फ्रैंचाइजी मॉडल जो बोलते हैं हम, कि फ्रैंचाइजीज दिए हैं, ब्रांचेस है बट मेन हेड ऑफिस एक होता है एंड बाकी के सारे फ्रैंचाइजी होते हैं। तो वो ब्रांचेस ही है ना फ्रैंचाइजी मतलब, एंड उनको सेम क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है। जो चितय बंधु के हेड ऑफिस में जो बाकरवड़ी मिलेगी वही सेम क्वालिटी देनी पड़ेगी। तो कभी कभी आप ऑब्जर्व करोगे फ्रेश ज़्यादा इधर ही मिली है, फिर ब्रांच में ज़्यादा फ्रेश नहीं है, तो उनको क्वालिटी वो मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि वही टेस्ट चाहिए ना लोगों को। जो हेड ऑफिस मेन दुकान में जैसे क्वालिटी मिलती है वही टेस्ट उनको वहाँ पर चाहिए। ठीक है। नाउ अकाउंटिंग इन द केस ऑफ फर्स्ट टू टाइप्स इज सिंपल, ए एंड बी, क्योंकि वो तो पहला तो सिर्फ बुकिंग लेने वाला है, दूसरा सेल करके हमें ही पैसे देने वाला है, बट तीसरा जो है फ्रैंचाइजी वाला वो गड़बड़ कर सकता है। हाँ, तो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि मैंने सुना है कि चितय बंदूक के केस में कि उनका डेली का जो कलेक्शन है वो रात को उनको जाके देना पड़ता है हेड ऑफिस को। So accounting in case of the first two types is simple. Only a record of expenses incurred at the branch has to be maintained. But however, a retail branch is essentially a sale agency that principally sells goods supplied by the head office for cash, and if so authorized also on credit to approved customers. Generally, cash collected is deposited into a local bank to the credit of the head office, and the head office issues checks or transfer funds thereon for meeting the expenses of the branch. In addition, the branch manager is provided with a float for petty expenses which is replenished from time to time on an impressed basis. पेटी कैश बुक सीखा है ना अपने फाउंडेशन में, कैश बुक था तो एक कुछ तो 10,000 दे के रखो उसको मंथली खर्चे के लिए, तो उसको फ्लोट बोलते हैं, फ्लोट फॉर पेटी एक्सपेंसेस। इफ हाउएवर द ब्रांच ऑल्सो सेल्स सर्टन लाइन्स ऑफ गुड्स डायरेक्टली परचेस्ड बाय इट, मतलब ब्रांच खुद कुछ डायरेक्ट परचेस कर रही है, हेड ऑफिस से भी सप्लाई हो रहा है एंड ब्रांच खुद डायरेक्ट परचेस करके सेल कर रही है। द ब्रांच रिटेन्स अ पार्ट ऑफ द सेल प्रोसीड्स टू पे फॉर द गुड्स सो परचेस। तो उस केस में जो भी सेल प्रोसीड्स ब्रांच को आएंगे, ब्रांच विल रिटेन दैट अमाउंट टू पे फॉर द परचेसेस, क्योंकि परचेसेस डायरेक्टली ब्रांच ने की। नाउ मेथड ऑफ चार्जिंग गुड्स टू ब्रांचेस, गुड्स में भी इनवॉइस टू ब्रांचेस एट कॉस्ट एट सेलिंग प्राइस, और इन केस ऑफ रिटेल ब्रांचेस at wholesale price. Selling price method is adopted where the goods would be sold at a fixed price by the branch. It is suitable for dealers in tea, petrol, etc. In this way, greater control can be exercised over the working of a branch, in as much as that the branch balance in the head office books would always be composed of the value of unsold
stock at the branch and remittances और goods in transit. So यहाँ पर कौन सी मेथड अडॉप्ट करनी है? सेलिंग प्राइस मेथड अडॉप्ट करनी है, where the goods would be sold at a fixed price by the branch. So dealers in T, so येवले अमृततुल्य बहुत सारे ब्रांचेस है, साइबा अमृततुल्य, ऐसे गुळाचा चहा वगैरह, तो उनका टी का प्राइस सेम होता है ना. आप येवले अमृततुल्य कौन से भी ब्रांच में जाओ, सेम प्राइस. तो अगर सेम प्राइस पे आप सेल कर रहे हो तो वहां पर सोल्ड एट फिक्स प्राइस ना. फिर आप कौन सी मेथड लगाओगे? सेलिंग प्राइस मेथड. ओके, पेट्रोल भी सेम ही रेट पे देना पड़ेगा. घी वगैरह का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है. So in this way a greater control can be exercised over the working of a branch in as much as the branch balance in the head office books would always be composed of the value of unsold stock at the branch and remittances or goods in transit. So for example, आपने 100 क्वांटिटी टी, 100 कप्स टी बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल लगता है, शुगर, टी पाउडर, मिल्क वगैरह, वो क्वांटिटी का रॉ मटेरियल दिया है 100 क्वांटिटी का आपके ब्रांच को. तो उससे जो सेल्स का रिकॉर्ड आपको आएगा वो 100 से ज़्यादा आ ही नहीं सकता, करेक्ट. बट 100 एग्जैक्ट आ गया तो उतनी आपको 100 इंटू 20 रुपीज़ ना पर कप, तो 2000 आपको आने चाहिए. उससे कम आया तो गड़बड़ है. वहाँ पर स्टॉक भी अगर वो बोल रहे हैं नहीं 80 कप्स ही सेल हुए हैं, तो आप बोलोगे फिर 20 कप्स का अनसोल्ड स्टॉक दिखाओ, तो वो टैली होना चाहिए. वो बोल रहा है स्टॉक में तो कुछ नहीं है, मतलब 100 कप सेल हुए हैं, तो 2000 आने चाहिए मुझे. तो ये कंट्रोल आप रख सकते हो कब? अगर सेलिंग प्राइस फिक्स है और आपको पता है कि आपने 100 कप्स का ही अगर उसको रॉ मटेरियल दिया था, 100 कप बनाने के लिए उनका वो मेजर्स फिक्स रहते हैं ना कि इतनी शुगर, इतना मिल्क, इतना वो टी पाउडर, तो 100 का ही दिया है, तो उससे ज़्यादा कम अगर हुआ, कम हुआ तो स्टॉक बताओ, ज़्यादा हुआ तो कैसे ज़्यादा सेल किया? मैंने तो 100 कप्स का ही दिया था. फिर ओपनिंग में कुछ स्टॉक था क्या तुम्हारे पास? तो ठीक है, बट ओपनिंग में भी नहीं है और तुम 200 कप सेल करके मुझे 100 कप्स का ही दे रहे हो, तो कुछ तो उस ब्रांच में गड़बड़ है. So goods may be invoiced to the branch at cost at selling price in case of retail branches at wholesale price. So आप ब्रांच बढ़ा रहे हो, सिर्फ मेरे बहुत ब्रांचेस है, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस हुआ, बट उस ब्रांचेस पे कंट्रोल भी रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे ब्रांच बड़ी होते जाएगी वो जो ब्रांच मैनेजर है उसको लगेगा अरे मेरे वजह से तो बड़ी हो रही है. ओके, उसको ये नहीं समझता नाम येवले अमृततुल्य है इसलिए बड़ी हो रही है. ओके, तुम्हारे नाम से नहीं आ रहा, वो नाम है ना, वो नाम देख के आ रहे हैं लोग. सो हेड ऑफिस उसके लिए काम कर रहा है. तो कभी कभी ब्रांच मैनेजर को ऐसे लगने लगा रहे ये तो मैं ही चला रहा हूँ, तो मैं मेरे नाम से निकालता हूँ, फिर जब 0 आएंगे तब समझेगा ये नाम था इसलिए चल रहा था, अभी वो नाम हट गया तो कोई नहीं आ रहा है. ठीक है, तो उनको ऐसे कंट्रोल में रखना पड़ता है. हाँ, बट एट द सेम टाइम उनका ईगो भी हर्ट करके नहीं चलेगा, क्योंकि आपका बिजनेस वो बढ़ा रहे हैं ना उधर, तो आपने उनका ईगो हर्ट किया तो क्या होगा? वो बोलेंगे नहीं चाहिए हमें फ्रैंचाइजी, हम दूसरे की फ्रैंचाइजी लेंगे. तो बिजनेस करते वक्त आपको बहुत सोच समझ के. नाउ अकाउंटिंग फॉर डिपेंडेंट ब्रांचेस डज नॉट मेंटेन अ कंप्लीट record of its transactions. The head office may maintain accounts of dependent branches in any of the following methods: at cost or at selling price or at wholesale price. So at cost or at selling price अगर आपने head office ने दिया goods branch को, तो debtors method, stock and debtors method and trading and P&L method है. wholesale price पे दिया तो wholesale branch method है. When goods are invoiced at cost, if the goods are invoiced to the branch at cost,
The trading results of the branch can be ascertained by the following any of the three methods: debtors method, stock and debtors method, trading P&L account. For finding out the trading results of the branch, it is assumed that the branch is an entity separate from the head office. On this basis, a branch account is stated in the head office books, to which the price of goods or services provided or expenses paid out are debited, and correspondingly the value of benefits and cash received from the branch are credited. So on this basis, a branch account is stated in the head office books, to which the price of goods or services provided or expenses paid out are debited, and correspondingly the value of benefits and cash received from the branch are credited. So first, debtors method. This method of accounting is suitable for small size branches. Under this method, separate branch account is maintained for each branch to compute profit or loss made by each branch. Various accounting adjustments to respective branch account are as follows. So the opening balance of stock, debtors if any, petty cash if any, are debited to branch account. The cost of goods sent to the branch, as well as any direct purchases made by the branch for which head office makes the payment. Expenses of the branch paid by head office, example salaries, rent, insurance, etc., are also debited to it. Conversely, amounts remitted by the branch and the cost of the goods returned by the branch are credited. So branch account के credit को क्या क्या होगा? Amounts remitted by the branch, मतलब branch ने जो आपको cash दिया, आप head office हो, head office के angle से सोचो, and the cost of the goods returned by the branch. तो branch is the giver ना for you, and stock आ रहा है आपके पास, खराब stock आपने भेजा था, या कैश आ रही है, हाँ, सो बाय बैंक कैश आ रही है, या रिटर्न आ रहे हैं गुड्स, सो बाय रिटर्न टू HO, या फिक्स एसेट आ रहे हैं वापस, करेक्ट. सो at the end of the year, the value of the unsold stock, the total of the customer's balances outstanding, and that of petty cash are brought into the branch account on the credit side. ये कैसे क्रेडिट है? अच्छा ना, चालू है ना? Accordingly, the branch account will reveal profit or loss. Debit balance will be the loss suffered by the working of the branch and vice versa. Debit balance है तो loss, credit balance है तो profit. If the branch is allowed to make small purchases of goods locally as well as to incur expenses out of its cash receipts, it will be necessary for the branch to supply to the head office a copy of the cash account. So if the branch is allowed to make small purchases of goods locally as well as to incur expenses out of its cash receipts, मतलब आपने ब्रांच को उतना अथॉरिटी दिया है कि स्मॉल परचेसेस करो, स्मॉल एक्सपेंसेस आप करो, इट विल बी नेसेसरी फॉर द ब्रांच टू सप्लाई टू द हेड ऑफिस अ कॉपी ऑफ द कैश अकाउंट शोइंग डिटेल्स ऑफ कैश collections and disbursements to illustrate the various entries which are made in the branch account, the pro forma branch. So branch account, two balance brought down. So branch account में आपका opening cash, stock, debtors, petty cash, fixed assets, prepaid expenses है, हाँ, ये two balance brought down and buy balance carried down, ये सब है. Then to goods sent to branch, then to बैंक अकाउंट, आपने जो खर्चे किए हेड ऑफिस ने, आपने मतलब हेड ऑफिस ने ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच, तो वो टू बैंक में जाएंगे ना, सैलरीज, रेंट, सन्ड्री, एंड फिर जो भी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड ज्यादा आई तो P&L, टू P&L प्रॉफिट, डेबिट साइड ज्यादा है तो बाय P&L लॉस.
एंड यहाँ पे रिटर्न्स में बाय बैंक पैसे आ रहे हैं, कहाँ से? ब्रांच से। रिटर्न आ रहा है, आपने कुछ गड़बड़ खराब वाला माल भेजा था ब्रांच को, तो ब्रांच ने आपको रिटर्न किया। नोट, हैविंग credited the branch account by actual cash received from debtors, it would be incorrect to debit the branch account in respect of discount or allowances to debtors. The accuracy of the trading results as disclosed by the branch account so maintained, if considered necessary, can be proved by preparing a memorandum branch trading and profit and loss account in the usual way from the balances of various items of इनकम एंड एक्सपेंसेस कंटेंट इन द ब्रांच अकाउंट। सो इससे जो प्रॉफिट और लॉस आ रहा है ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करके, वो प्रॉफिट और लॉस करेक्ट है या नहीं है, वो देखने के लिए वो बोल रहे हैं मेमोरेंडम ब्रांच ट्रेडिंग P&L बना के देख लो, जिसमें आप ब्रांच ऐसे समझो कि आप ब्रांच हो एंड आपके एक्सपेंसेस एंड आपके इनकम ऐसे समझो, तो वो मेमोरेंडम हो जाएगा। मेमोरेंडम मतलब नॉट रियल, टेम्पररी। सो मेमोरेंडम बना के देख लो, फिर समझेगा कि ये जो प्रॉफिट आया है वही प्रॉफिट ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करके आया है। ओके, एंड फर्स्ट क्या था? हैविंग क्रेडिटेड द ब्रांच अकाउंट बाय द एक्चुअल कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, इट वुड बी इनकरेक्ट टू डेबिट द ब्रांच अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्काउंट और अलाउंसेस टू डेटर्स। तो देखो, जो आपने कैश रिसीव की है, आपने नहीं, ब्रांच ने, फ्रॉम कस्टमर्स, फ्रॉम डेटर्स, वो कैश ब्रांच आपको दे रही है, तो आपको नेट ही आ रहा है ना डायरेक्टली, तो फिर से डेबिट को वो डिस्काउंट वगैरह मत लिखो, क्योंकि नेट ही आया है। आपको ग्रॉस दिखाना पड़ेगा, मतलब कैसे? डेटर्स कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। तो आप सिर्फ कैश दिखा रहे हो, कैश टू डेटर्स, तो फिर से डिस्काउंट डेबिट मत करो, क्योंकि आप नेट ही दिखा रहे हो। सो एग्जाम्पल 1, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक्स एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट। XP Limited opened a branch at Delhi and sent goods costing 50,000 to Delhi branch. So, 2 goods sent to branch 50,000 and Delhi branch sold entire goods on credit at 62,000. So, no other transactions occurred at the branch. So, यहाँ पर opening branch assets नील है and closing branch assets में debtors है 62,000 के। स्टॉक कुछ नहीं है क्योंकि सारे ही सेल कर दे है ना, सोल्ड एंटायर गुड्स। सो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक नील है एंड क्लोजिंग डेटर्स कितने हैं? 62,000। ओपनिंग डेटर्स 0, गुड्स सेंड टू ब्रांच 50,000, टू प्रॉफिट एंड लॉस 12,000। एक 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर आगे के क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम्पल 2, 3, इलस्ट्रेशन 1A। इतना होने के बाद स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, वो होने के बाद ब्रांच ट्रेडिंग P&L, फाइनल अकाउंट्स मेथड। उतना तो हम कंप्लीट कर सकते हैं आज, ऐसे लग रहा है। हाँ, फॉरेन ब्रांच डेंजर है क्या? आपको रात को आना है? रात को करना है क्या ऑनलाइन लेक्चर? क्योंकि सारे तो नहीं ना खत्म होंगे। वॉइस इज नॉट ऑडिबल, मैं तो चिल्ला रही हूँ यहाँ पर। मैम म्यूट है? अरे देवा, ये म्यूट था। तो आपको आई थिंक रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जूम का म्यूट था ना, तो मैंने अभी 5 मिनट्स के लिए ब्रेक दिया है। मैं इमीडिएटली अपलोड करती हूँ यूट्यूब पे ये वीडियो। सो आपको रिवाइज करना है ब्रांच अकाउंट। यहां तक किया हमने, एग्जाम्पल 1 तक हो गया है। ओके, सो एग्जाम्पल 2,
क्वेश्चन देखो लास्ट लाइन, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन HO बुक्स एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट। XP Limited opened a new branch at Delhi. XP Limited sent goods costing rupees 50,000 to Delhi branch. Delhi branch sold entire goods in cash at 70,000. Branch paid expenses of 8,000. No other transaction occurred at the branch. Prepare branch account in HO books and find out the profit. So opening stock nil है, so to opening branch assets nil, to goods sent to branch 50,000. Then by क्लोजिंग ब्रांच एसेट, सो स्टॉक नील था, डेटर्स भी कुछ नहीं थे क्योंकि जो गुड्स सेल्ड हुए हैं वो एंटायर सोल्ड है कैश, सो डेटर्स का भी बैलेंस नील। पैसे आ गए 70,000 सेल करके, बट 8,000 के ब्रांच एक्सपेंसेस हुए, मतलब ही 62,000 का कैश बैलेंस बाकी है। सो प्रॉफिट अगेन 12,000 का हुआ, 62,000 माइनस 50,000। सो यही मेमोरेंडम ब्रांच ट्रेडिंग P&L में आप क्या करोगे, गुड्स सेंड टू ब्रांच 50,000 दिखाओगे, देन बाय कैश सेल्स दिखाओगे 70,000 एंड टू ब्रांच एक्सपेंसेस 8,000। सो ऐसे करके प्रॉफिट 12,000 ही आएगा। सो ब्रांच P&L अगर आपने बनाया मेमोरेंडम, तो एक्सपेंसेस साइड को, मतलब डेबिट साइड को, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 50,000 दिखेगा, टू ब्रांच एक्सपेंसेस 8,000 दिखेगा, एंड क्रेडिट साइड को बाय सेल्स दिखेगा 70,000। सो 70,000 माइनस 58,000 12,000। तो इंस्टेड ऑफ दैट वी आर टेकिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस एंड गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस को भी आपने कंपेयर किया तो भी आपको ब्रांच प्रॉफिट मिलेगा, एंड दैट प्रॉफिट इज इक्वल टू मेमोरेंडम P&L बना के जो प्रॉफिट आएगा वो। नाउ एग्जांपल 3, प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट एंड फाइंड आउट प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच इफ ट्रांजैक्शन आर एज अंडर गुड्स सेंड टू ब्रांच, फर्नीचर सेंड टू ब्रांच, furniture 10,000 at the beginning of the year, credit sales at branch, bad debts, other information, closing stock at branch, closing debtors, furniture after depreciation at 20%. so branch account देखो कैसे बनेगा, goods sent to branch 50,000 to goods sent to branch, furniture sent to branch at the beginning, so opening balance क्या हुआ ब्रांच एसेट्स का 10,000 का फर्नीचर, फिर 62,000 के क्रेडिट सेल्स है, मतलब हाँ, बट डेटर्स बैड डेट्स भी है 1,000 के। सो डेटर्स आपको रिसीवेबल सिर्फ 61 ही दिखाओगे ना, क्लोजिंग डेटर्स 61,000 दिखाओगे बाय क्लोजिंग ब्रांच एसेट्स, एंड अदर इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच कितना दिखाओगे 10,000। ये क्लोजिंग डेटर 61,000 कैसे आया समझा आपको, एंड फर्नीचर आफ्टर डेप्रिसिएशन, बिगिनिंग में फर्नीचर कितना था 10,000 एंड क्लोजिंग में 8,000, सो डिफरेंस इज 19,000 प्रॉफिट। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर नागपुर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस बाय डेटर्स मेथड, जो अभी हम कर रहे हैं वो मेथड। सो बकिंगहाम ब्रदर्स बॉम्बे हैव अ ब्रांच एट नागपुर, they send goods at cost to their branch at Nagpur. However, direct purchases are also made by the branch for which payments are made at head office. All the daily collections are transferred from the branch to the head office. मैंने जो बताया ना आपको, all daily collections सेंड करने पड़ते हैं हेड ऑफिस को। हाँ, सो ओपनिंग बैलेंस दिया है, इम्प्रेस्ड कैश है इनके पास, मतलब ही पेडी कैश, सन्ड्री डेटर्स है, स्टॉक है क्या ओपनिंग स्टॉक है, बट वो स्टॉक कौन सा है, खुद परचेस किए हुए गुड्स का ट्रांसफर्ड फ्रॉम HO का स्टॉक है, डायरेक्ट परचेसेस का भी स्टॉक है उनके पास। इसमें डायरेक्ट परचेसेस वो ब्रांच ये हेड ऑफिस वाला है, लेकिन नीचे 45,000 दिया हुआ है, वो उन्होंने डायरेक्ट किया, दोनों एक साथ दे दिया। नहीं, ये स्टॉक का चल रहा है, जो ओपनिंग स्टॉक है उनके पास। सो ओपनिंग स्टॉक में जो गुड्स है वो
24,000 के गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम एचओ वाले हैं एंड जो 16,000 के गुड्स स्टॉक में है वो डायरेक्ट परचेस किए हुए गुड्स है। सो स्टॉक का है, स्टॉक का, ये दोनों स्टॉक का है। वो तो सर और नीचे का डायरेक्ट परचेस करंट ईयर में डायरेक्ट परचेस किया है। अलग पोर्शन करके ये तो स्टॉक है ना, ओपनिंग स्टॉक, ये दोनों ओपनिंग स्टॉक ही है, ओके गुड्स है ओपनिंग में आपके पास। हम बोले थे 45 + 16 करके 60 16 इज नॉट करंट ईयर परचेसेस, 16 इज द ओपनिंग स्टॉक, बट गुड्स कहाँ से आए उस स्टॉक में? डायरेक्ट परचेस करके। एंड जो बाकी 24,000 के गुड्स है वो हेड ऑफिस से आए हुए, मतलब टोटल ओपनिंग स्टॉक में आपके पास 40,000 के गुड्स पड़े हुए हैं ओपनिंग स्टॉक में। तो वो 40,000 का बाइफरकेशन ऐसे है कि ये जो गुड्स है वो डायरेक्टली एचओ से आए थे एंड ये जो गुड्स है वो हमने खुद परचेस किए थे। ऐसे वो 40,000 का ओपनिंग स्टॉक आपके पास है। हमारा ओपनिंग बैलेंस ही चल रहा है अभी तक। अभी आप कैश सेल्स पे आ गए, फिर क्रेडिट सेल्स, फिर डायरेक्ट परचेस किए, फिर रिटर्न किए फ्रॉम कस्टमर्स, फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच फ्रॉम एचओ, ट्रांसफर फ्रॉम एचओ फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस, देन बैड डेट्स, discount to customers, remittances to HO. So received by HO 1,65,000, remittances to HO not received by HO so far. हाँ, ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय HO। फिर क्लोजिंग बैलेंसेस आपके स्टार्ट हुए। क्लोजिंग बैलेंस में जो स्टॉक है उसमें अगेन डायरेक्ट परचेस किया जो किए उसका स्टॉक एंड जो सप्लाई हुआ फ्रॉम एचओ उसका स्टॉक, एंड फिर डेटर्स एंड इम्प्रेस्ड कैश आपको निकालना, पेटी कैश एक्सपेंसेस दिए। सो नागपुर ब्रांच के ओपनिंग ब्रांच एसेट स्टॉक अभी 40 दिखेगा दोनों मिला के ना। देन डेटर्स 25,000 दिए थे, क्या दिए थे? इम्प्रेस्ड कैश 2,000 का ओपनिंग दिया हुआ है। सो आपने ओपनिंग लिखा 2,000, 25,000 एंड ये दोनों मिला के 40,000। देन आपको डायरेक्टली लिखना है टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 60,000। ठीक है, यहाँ तक रुको। बाकी बीच का डेटा कहाँ पर गया तो वो आएगा, रुको। कैश सेल्स कहाँ पर जाएंगे? सो क्रेडिट साइड को बाय बैंक, जो रेमिटेंस रिसीव्ड हुआ फ्रॉम ब्रांच, कैश सेल मिल गया आपको 45,000 एंड कैश फ्रॉम डेटर्स जो 1,20,000 आया उसके लिए मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट। फिर ओपनिंग बैलेंस 25,000 था डेटर्स का, क्रेडिट सेल्स 1,30,000 का, 3,000 करें रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स, बाय बैड डेट्स 1,000, बाय डिस्काउंट टू कस्टमर्स करे 2,000, कैश क्लोजिंग बैलेंस दिया है ना उन्होंने, वही निकालना है। हाँ, सो देखो क्रेडिट सेल्स जो 1,30,000 के थे ना उसमें से 5,000 नॉट येट रिसीव्ड बाय एचओ, सो 1,25,000 इज द कैश रिसीव्ड फ्रॉम एचओ। फिर बाय बैलेंस कैरिड डाउन 24,000 आ गया। देखो यहाँ पर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, टोटल रेमिटेंसेस आपको दिए गए थे 1,65,000 रिसीव्ड एंड 5,000 इन ट्रांजिट, तो वो आया 1,70,000। उसमें से कैश सेल माइनस करो, कैश सेल 45,000 थे क्या, मतलब बाकी का डेटर्स से आया है ना 1,25,000। सो बाय कैश 1,25,000, इसलिए क्लोजिंग बैलेंस 24,000 आया, वो आपको लिखना पड़ेगा ना इधर। 24,000 आपने लिख दिया, करेक्ट। अभी क्लोजिंग बैलेंस है स्टॉक का तो 25,000 हो गया, 10 प्लस 15। ओके, ये भी आपको समझ में आ गया। कैश सेल्स, कैश फ्रॉम डेटर्स 1,20,000, वो तो आपने मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर किया। कैश इन ट्रांजिट 5,000 दिया हुआ था,
डेबिट साइड के ओपनिंग बैलेंसेस टू गुड्स एंड टू ब्रांच, टू क्रेडिटर्स डायरेक्ट परचेसेस, 45,000 के डायरेक्ट परचेसेस किए नागपुर ब्रांच ने, बट डायरेक्ट परचेसेस का पेमेंट कौन करता है? हेड ऑफिस, जैसे हम करते हैं। ओके, मुझे आईफोन चाहिए, हाँ, ब्रांच है हम, एंड पेमेंट कौन करेगा आपके आईफोन का? हेड ऑफिस, पेरेंट्स। सो आपके क्रेडिटर बन गए। सो ब्रांच ने परचेसेस किए आईफोन, इसलिए हेड ऑफिस को पेमेंट आ गया 45,000 का। सो वो टू क्रेडिटर्स में जाएगा एंड ब्रैकेट में लिखना है डायरेक्ट परचेस 45,000। और क्या बाकी? अभी ये सब साइड हो गई। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स मेमोरेंडम डेटर्स में गया था। गुड्स एंड टू ब्रांच आपने लिखा। ट्रांसफर फ्रॉम एचओ फॉर पेटी कैश एक्सपेंस, सो पेटी कैश का भी एक मेमोरेंडम अकाउंट बना। 2000 ओपनिंग था क्या? यस। एंड बाय एक्सपेंसेस मेड बाय ब्रांच, एंड एचओ ने आपको 4000 दिए थे ना। ट्रांसफर फ्रॉम एचओ फॉर पेटी कैश एक्सपेंस 4000 आ गए थे। सो पहले ही आपके पास बैलेंस था 2000 का ओपनिंग, उसके बाद 4000 आपको आए थे, करेक्ट? देन क्लोजिंग में वो बोल रहे पेटी कैश एक्सपेंसेस 4000 आपने किए। सो क्लोजिंग पेटी, क्लोजिंग इम्प्रेस्ड कैश आपको निकालना है, बट पेटी कैश एक्सपेंस आपके 4000 हो गए, इसलिए फिर से क्लोजिंग बैलेंस 2000 ही बचा है। ऐसे वर्किंग नोट 2 से 2000 आ गए। कैश फ्रॉम डेटर्स कैसा है? इसका बैलेंसिंग फिगर है ना वो। नहीं ना, उसका तो क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर तो क्लोजिंग स्टॉक है ना डेटर्स का, तो डेटर्स अकाउंट से हाँ 24,000 आया ना। वो ऊपर जो है क्या है बाई बैंक से जो भी कैश, ये दोनों मिला के 1,25,000 ना, इसलिए वो 1,20,000 एंड 5,000 अलग से है। जो आपको मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट में 1,25,000 दिख रहा है, उसका ही वो बाइफर्केशन है। 1,20,000 रिसीव्ड, 5,000 इन ट्रांजिट। ये क्या है? टू बैंक ब्रांच को पेमेंट्स किए थे क्या आपने? हाँ, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड डायरेक्टली बाय हेड ऑफिस 30,000। कहाँ पर? मैम जो स्टेशन में राइट साइड में ब्रांच एक्सपेंसेस, हाँ, ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय एचओ। ओके, सो डेबिट द रिसीवर, हु इज द रिसीवर? ब्रांच। आप ब्रांच को दे रहे हो एंड पेमेंट हो रहा है। सो आपके डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश इज गोइंग आउट। सो टू बैंक। ओके, यहाँ पर ये कैश अलग है 30,000 वाली, और वो पेटी वाली है इम्प्रेस्ड कैश जो बोलते हैं आप। सो ये पेटी कैश के लिए आपने 4000 दिए थे, पेटी कैश एक्सपेंसेस के लिए ब्रांच को 4000 दिए थे, एंड जनरल एक्सपेंसेस ब्रांच एक्सपेंसेस के लिए 30,000 दिए थे। तो ये अभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है घर पे। सो ये हो गया डेटर्स मेथड। सो अभी बाकी है ब्रांच अकाउंट। सो ऐसे ही लॉजिक लगा लगा के स्टॉक एंड डेटर्स मेथड आप खुद से कर सकते हो। टेस्ट के लिए आपको करना है, टेस्ट के लिए तो नहीं, तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालने ही वाली हूँ आगे के कंसेप्ट का। एंड कॉमन सेंस लगाओ। मैं फाउंडेशन के बैच में तो वही बोलती थी, हार्दिका को पता होगा वो, कि अकाउंट्स इज एंटायरली बेस्ड ऑन लॉजिक एंड कॉमन सेंस। कॉमन सेंस लगाओ, कुछ भी लर्न नहीं करना पड़ता है अकाउंट्स में। इसने जैसे अकाउंटिंग किया होगा, ये जो इन्होंने डिसाइड किया होगा कि डेटर्स मेथड ये क्यों आई होगी, तो इसमें क्या इजी जा रहा है कि ओपनिंग बैलेंसेस एंड क्लोजिंग बैलेंसेस उनसे आना इजी है ना। ब्रांच आपको बोल सकती है मेरे पास कैश इतनी पड़ी हुई है, मेरे पास स्टॉक इतना पड़ा हुआ है, इतने कस्टमर से आना बाकी है, रिसीवेबल्स दैट इज डेटर्स। वो क्लोजिंग वो आपको इजीली बता सकती है ना। तो ब्रांच से आपको क्लोजिंग मिल गया, आपको पता है आपने ब्रांच को कितने गुड्स सेंड किए थे, आपने कितना पेमेंट किया था ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच। जैसे ब्रांच खुद से ही आईफोन ले रही है तो पेमेंट आपको करना पड़ रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन तो आपके पास है ही। फॉर डायरेक्ट परचेसेस की उधर से आ जाएगी ब्रांच से,
बट आपने कितना गुड्स सेंड किया था, आपने क्या पैसे दिए थे उनको पेटी कैश एक्सपेंस के लिए, नॉर्मल ब्रांच एक्सपेंस करने के लिए, वो सब इंफॉर्मेशन आपके पास है। प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग क्या हो जाता है, करंट ईयर का ओपनिंग। सो उनसे सिर्फ क्या लेना है आपको, अगर आपने कुछ खुद से परचेसेस किए हैं तो वो लेने हैं, एंड क्लोजिंग बैलेंसेस बताओ, एंड डेटर्स के साथ क्या क्या किया है वो बताओ। ओपनिंग डेटर्स आपके पास होंगे ही, डेटर्स कितने बैड डेट्स हुए, आपने कितना डिस्काउंट दिया था, कुछ रिटर्न किए क्या कस्टमर्स ने आपको, तो बाकी का कैश रिसीव, तो क्लोजिंग बैलेंस। सो उतनी इंफॉर्मेशन किससे लेनी है, ब्रांच से, एंड देन ओपनिंग क्लोजिंग बना के, ओपनिंग क्लोजिंग डाल के बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ठीक है। सो अभी डेटर्स मेथड हुई हमारी, बट उसमें हमने क्या किया, गुड्स इनवॉइस्ड एट कॉस्ट, गुड्स इनवॉइस्ड एट इनवॉइस प्राइस में वो लोडिंग ले रहता है ना, वो रिवर्स करते जाना है। हाँ, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से 7 अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, ब्रांच स्टॉक अकाउंट और ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब ऐसे समझो कि ट्रेडिंग अकाउंट जैसे बनाते थे ना आप 11th-12th में, वैसे ही ये ब्रांच स्टॉक काम करेगा। ब्रांच स्टॉक इज इक्वल टू ही ब्रांच ट्रेडिंग। फिर ब्रांच डेटर्स का बनाओ, ब्रांच एक्सपेंस, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच कैश और बैंक अकाउंट, ब्रांच फिक्स एसेट, ब्रांच P&L। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड ये इसमें भी वैसे ही होगा ना, पहले तो एट कॉस्ट होगा, ये एट कॉस्ट का ही चल रहा है। फिर ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस मेथड इजी है, फिर यही सारे सॉल्विंग इलस्ट्रेशन बाय ऑल 3 मेथड्स। फिर ये होने के बाद यही व्हेन गुड्स आर इनवॉइस्ड एट सेलिंग प्राइस, तो उसमें लोडिंग वगैरह रिवर्स करना पड़ेगा, अनरियलाइज प्रॉफिट वगैरह रिमूव करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट बैंक में जनरली अभी डेटर्स मेथड ये कहाँ से आ गई, अंडर दिस मेथड द प्रिंसिपल अकाउंट होलसेल मेथड, होल नहीं, व्हेन इट इज इनवॉइस्ड एट सेलिंग प्राइस में आएगा ना वो। हाँ, याद आया मुझे। व्हेन गुड्स आर इनवॉइस्ड एट सेलिंग प्राइस है, उसमें उन्होंने पहले स्टॉक एंड डेटर्स मेथड ली है एंड देन डेटर्स मेथड ली है। एंड व्हेन गुड्स आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट, पहले डेटर्स मेथड एंड देन स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। सो इसमें पहली इनकी स्टॉक एंड डेटर्स मेथड है, व्हेन गुड्स आर इनवॉइस्ड एट सेलिंग प्राइस। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड होने के बाद सेकेंड मेथड है उनकी डेटर्स मेथड। तो डेटर्स मेथड में एक्चुअली जब एट कॉस्ट होता है तब हम क्या करते हैं, एक ही अकाउंट बनाते हैं ना, ब्रांच अकाउंट। बट व्हेन गुड्स आर सेंट एट सेलिंग प्राइस, ब्रांच अकाउंट के साथ गुड्स सेंट टू ब्रांच भी आता है एंड स्टॉक रिजर्व भी आता है। सो व्हेन गुड्स आर सोल्ड एट, व्हेन गुड्स आर सेंट एट सेलिंग प्राइस, उसमें अगेन वो तीनों मेथड से कैसे चलता है वो देखना पड़ेगा। फिर वो दूसरी मेथड, गुड्स इनवॉइस्ड एट होलसेल प्राइस टू रिटेल ब्रांचेस, मतलब जो फ्रैंचाइजी मॉडल पे चलते हैं वो। एंड देन अकाउंटिंग फॉर इंडिपेंडेंट ब्रांचेस, सो वो अलग से बनाएंगे हम, अलग से चल रहा है हमारा। सो इंडिपेंडेंट ब्रांच बना रही है इसलिए आपको कुछ नहीं करना है ऐसे नहीं है, हाँ, वो तो ज़्यादा हेडेक है। फिर उसमें रिकन्सिलिएशन भी आएगा कि हमने ऐसे मेंटेन किया है, तुमने कैसे किया, फिर वो मैच होना चाहिए। फिर रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट, फिर उसके क्वेश्चन, इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस जो हुए, एक ने रिकॉर्ड किया दूसरे ने रिकॉर्ड ही नहीं किया। हाँ, ग्रेट, बात खत्म। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इन ब्रांच बुक एंड देन फॉरेन ब्रांच, तो एटलीस्ट फॉरेन ब्रांच तो करो, उसमें भी है वो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, नॉन इंटीग्रल फॉरेन। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में जो आपका एक्सचेंज रेट और गेन आता है वो P&L में जाता है, नॉन इंटीग्रल में बैलेंस शीट में चला जाता है।
और उसमें एक्सपेंस जो P&L की आइटम है सबको एवरेज पे कर देना है, बैलेंस शीट की आइटम है क्लोजिंग या ओपनिंग पे होगी। एक्चुअली बड़ा है टॉपिक, डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट लेंदी लेंदी है। सो ऐसे एक ही इसमें एट अ स्ट्रेच नहीं सीखना है, हाँ थोड़ा थोड़ा। आज एक मेथड हो गई, स्टॉक मतलब डेटर्स मेथड हो गई, बट अभी आपकी एग्जाम नवंबर में नहीं है ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा नहीं चलेगा, आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक लो बीच में एंड करते रहो। सो बाकी का अभी हम रिज्यूम कब कर रहे हैं? 23 फेब को डायरेक्टली अमलगमेशन के साथ ना, टेस्ट 2 के टॉपिक्स एंड टेस्ट 1 के जो टॉपिक्स बचे हैं वो आपको ऑनलाइन देखने हैं।